Welcome to lecture number 10 and 11 of Signals and System. In today's class, we will continue our discussion on Fourier series. In previous class, we talked about stability of LTI systems and Fourier series. A little bit introduction in which we saw that we need type of signals to study which can hello. We want to study such type of signals which can cater broad categories of systems, and as far as stability of the LTI systems is concerned, we said that if there is a complex exponential, maybe this is another slide. In stability of the system, we talked about if the in particular discrete time systems, if the impulse response h of k is absolutely summable, that means its output is bounded or not infinity, then the system discrete time system is said to be stable because we are applying bounded input. So if impulse response is bounded, then the output resultant output would also be bounded. And then we discussed stability of continuous time system as well, LTI systems in particular, uh, and we said that if the impulse response of continuous time LTI system is absolutely integrable, then we can say the system LTI system is stable, otherwise not. Afterwards, we discussed about eigenfunction. Uh, we said that if there is a complex exponential function, in particular if we talk about discrete time z power n, if we feed this input to the system, the resultant output must be this same signal with some complex coefficient multiplied to it. So if you solve it, we talked about it in detail in previous class. If you want to review it, you can go and check your previous lectures available on YouTube as well as Microsoft Stream. So you can see when we pass it through a LTI system, the resultant output is z power n and multiply with h of z, which may be a arbitrary coefficient, a complex coefficient, right? Okay, likewise in continuous time system, e to the power st, if you pass this to an LTI system, you will get this same signal as output with some coefficient multiplied to it. We haven't solved this coefficient. In as we progress in our course, we will solve it in future classes. What is this and what does it mean? Okay, linear combination of harmonically related complex exponentials. We talked about that what are harmonically related complex coefficient whose frequencies are of integer multiple in relation with integer multiple to each other. For example, there is one signal e to the power j omega naught only, j omega naught t, and another signal is e to the power j 2 omega naught t. Then these both signals are harmonically related to each other because uh, the first exponential has frequency omega naught and second has 2 omega naught. So if you multiply omega naught with 2, you get 2 omega naught. So these both signals are harmonically related to each other. So uh, we saw that in previous classes that we can show any signal x of t in terms of impulse functions, and we talked about that we can also decompose a signal into complex periodic signal into complex exponentials as well. And if those signals are complex, if those signals are harmonically related to each other, then we can sum them up like this. Okay, and now omega naught is equal to 2 pi by t. So I have just substituted this omega naught with 2 pi by t and we got this value. Okay, the first harmonic is called when k is equal to 1, we get fundamental frequency omega naught,
and that is called fundamental component or first component. If k is equal to 2, then we call it second harmonic component, and if k is n, then we call it as nth component of fundamental frequency, or nth, or just nth harmonic component. So what we are going to discuss today, we saw that we can show any periodic signal into its sum of harmonic related complex coefficients, but we did not calculate this particular value ak. For example, if we know x of t and we want to represent it in this exponential form, then we need this ak as well. So how to calculate this ak value? Now today we will discuss about it, and we will also discuss about properties of Fourier series. So without any delay, let's start. So we know that x of t is equal to k summation k from minus infinity to plus infinity ak e to the power j k omega naught t, right? Now if you wish to solve this ak, then what you need to do, you just multiply e to the power minus j omega n both sides, right? I have multiplied e to the power minus j omega n, you can see on both sides, right? Now if you see, I have integrated it over just one period, fundamental time period. I just integrated these both sides over just one period of a signal, right? Now if you see here, e multiply by e, so if base are same, power are to be added, right? So it would be jk omega naught t minus j omega naught n, right? Sorry, I have forgot to write t here. There must be t as well, j omega naught t, right? So you can see j is common in both terms, right? So I took common j, then k minus n is the only difference between them, and omega naught t. So if you take some values as common, j omega naught t, then you just left with k minus n. So we can represent it as well, right? So you can see here that this summation only belongs to k, right? And this integral has nothing to do with k component. It is just integrating with respect to time. So time is involved in just these variables. So what we do, we just bring this integration here, right? Because ak is just is a coefficient multiple, so we took ak outside. Now we are interested in to solve this particular integral. You can see okay, so I have solved it here. So now we are interested in to solve this particular interval. And if you see, if you want to calculate area of sine or cosine over one period of time, you would always get zero result, right? You would always get result zero if you, because if this is exponential, if you convert it into sine and cosine, it would be cos k minus n omega naught t plus j sine k minus n omega naught t. So for over one period of time, if you integrate sine or cosine, the area under the curve is always zero, remember, right? Because negative and positive will be cancelled. But if k is equal to n, then what would be the value? E to the power 0 over one time interval, right? From 0 to t, the value would be always 1, right? Now when k is equal to n, means k minus n, this would be 0, this term would be 0,
anything multiplied by 0 is 0, so e power 0 over one particular time interval, so that means e power 0 is 1. So the amplitude of the signal would be 1 when k is equal to n. And if you want to calculate the area under the curve of this, you can see what would be the area length into width. So 1 into t is t. So we can say that this whole term would be t when k is equal to n, 0 always otherwise. Okay. So this whole integral would be t when k is equal to n and 0 otherwise. So means this summation would also be reduced to an only, because we have just value over k when it is equal to n, so all other k's are 0, so an would be, we get only an from here and t from here, so we can represent it as ant, you can see here, right? Now rearranging this term and this term, an is equal to 1 upon t integral over one period x of t to the power minus j omega n t dt, right? If you write k here, then you have to write k here as well. If you want to write r here, then you have to write r here as well. So this is the final equation through which we can calculate AK coefficients, right? Yeah, spectral coefficients of the signal, right? ठीक है? Okay. So determination of Fourier series representation of continuous time periodic signal. To summarize, we know that now that x of t can be represented through complex coefficients and complex exponentials, right? This omega, and always remember this x of t should be periodic in this particular case. We will talk about aperiodic signals as well, but currently we are talking about only periodic signals, that we can really uh, represent a continuous time signal in some of complex coefficients. Yeah, please. Right. And to compute this AK complex coefficients or spectral coefficients, we need this formula. You see, now I have represented it K. So AK is equal to 1 upon T x of t e to the power minus j k omega naught t over one particular time interval, right? So if you wish to calculate a naught when you put k equal to 0, then what will you get? This would be equal to 1 upon t over one particular interval of time. And you see, if e to the power, when k is 0, this whole term would be 0, then e to the power 0 is 1. So you just must be integrating original signal over one particular time interval, right? So we always need to calculate a naught separately and ak terms separately. A naught is origin of the signal. If you want to plot AK, right, then you are calculating 0th index separately and then all other terms separately, right? So you need to remember these two equations. These are very important. These must be imprinted in your mind, that if we wish to represent x of t into sum of complex coefficients, then how to represent it, and if you want to calculate those spectrum values, AK values, then you need this formula to calculate it. So let's see. Now this is called synthesis equation, right? And this is called analysis, right? So what do you mean by synthesis and what do you mean by analysis? Synthesis is to decompose a unit or a system into its small parts, right? That is called analysis. You are decomposing a full system. For example, there was a system. Now you want to, it was comprises of many subsystems. So you wish to decompose it into those subsystems.
right? So this is called analysis, and you can see that we are really decomposing this x of t into AKs, many AK coefficients. So this is analysis, and synthesis is in contrary to that. It is totally different from it. You are combining many subsystems to produce a resultant system, right? So you, in this equation, you are combining many spectral coefficients to produce one signal, and in here you are decomposing a complete signal into its parts, into its complex coefficients, right? So these two equations are very important, and we have talked about it. This AK is Fourier coefficients or spectral coefficients. Okay, we are doing nothing. The original information x of t is same, just we are changing the representation. First it was in time domain, now we are converting it into frequency domain, or we are changing the orientation of the signal, but the information is same. Like we gave example of Quaid-e-Imam University, that if you want to if you write the address of Quaid-e-Imam University as Quaid-e-Imam University, Sakran Road, Nawab Shah, and if you track it through GPS, then those coordinates and address of university, the university is same. Okay, the only the way to represent the university is different. You can represent it through email address or address, or you wish to represent it through Google coordinates. So university does not change, university is same. So these that means we are only changing the representation of signal. Original signal is intact, right? So let's have an example. For example, if you see this is a periodic signal, you can see from here to here the same pattern is repeated from here to here, and same pattern is repeated from here to here. So this is a periodic signal, okay, with t is equal to 2 pi by omega. Okay, now we want to calculate its spectral coefficients AKs, because x of t is here. You can see this is the graph for x of t, time axis. Now we want to calculate its frequency components or complex coefficients. You can see we can represent this system as graphically as well as mathematically by equation. X of t is equal to 1 when t is less than 1. Now we can always write it like this as well. Minus t1 is less than t is less than t1, right? So it is 1 from minus t1 to t1. The value of signal is 1. You can see here, amplitude is not mentioned, you can mention it. It's 1, right? And 0 between this interval. Okay, so let's start solving it. First of all, as I say, we want to calculate this a naught, and a naught is equal to 1 upon t x of t dt, right? So we have given value, and now you can see this infinity, this time interval is now from, this time interval must be from this value minus to plus infinity. This must not be infinity, because we are now dealing with only periodic signals, and we want, if we wish to compute AK component, then it must be over just one time interval, right? Now initially we can write it from minus t1 t2 to t2 here, from minus t upon 2 to plus t upon 2, right? But we know exactly that this value, these values are 0. We don't have any value here. So the signal only exists from minus t1 to t1, and the amplitude is 1. So I have just written it directly. So
actually we are integrating it over complete time interval, right? Complete time period. But we know that this signal just exists from minus t1 to t1 in one time period, and its amplitude is 1. So I have given here boundaries as minus t1 to t1. Okay, now we know what is the value of this signal in this boundary, 1, right? So if you integrate this value, so t power 1 and from minus t1 to t1, now upper limit minus lower limit. So if you, first we put t1 into small t minus t1, so minus into minus plus, so our a naught is 2t1 upon t. Clear, Baba? जी सर. Okay. Okay, now we have calculated a naught. Now we want to calculate ak, means when k is not equal to 0. We have calculated for a when a k is 0, right? Now we want to calculate ak when k is not equal to 0. So this term must exist, right? Because this is non-zero value. Whatever its value is, we don't know. Okay, so what was the value of this x of t over this minus t1 to t1? 1. So you're right here, 1. Okay, now we wish to solve this integral, and if you know that if there is a function e to the power fx, right, and its derivative is multiplied with it, and you wish to calculate its integral over dx, then its output must be f of x, right? ये सर फंक्शन के बराबर होगा. Okay, only function के बराबर होगा. Very good. Say e to the power f of x, sorry. Okay, हमारा डेरिवेटिव यहाँ पर अवेलेबल अगर हो और वो फंक्शन हमारा एक्सपोनेंट के e के ऊपर हो, और अगर उसकी आप इंटीग्रेशन फाइंड करें तो वो हमेशा e टू द पावर f ऑफ x के बराबर ही होती है. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए. ये जो ऊपर फंक्शन है माइनस जे के ओमेगा नॉट टी, इसका अगर डेरिवेटिव फाइंड करें तो आपको क्या मिलेगा, माइनस जे के ओमेगा नॉट टी. सही है, जो टर्म यहाँ पर हमारे पास मिसिंग है. सही है, तो हमने क्या किया है, देखिए हमने माइनस जे के ओमेगा नॉट टी को मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया है. कर सकते हैं इस तरह कोई भी वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता. सही है. अच्छा, अब सेकंड स्टेप में हम क्या कहते हैं कि हमें तो सिर्फ ये डेरिवेटिव ही चाहिए जो हमारे पास न्यूमिनेटर में है. ये डिनोमिनेटर हमारा इस इंटीग्रल के काम का नहीं. और देखें ये हमारे पास जो इंटीग्रेशन हो रही है वो रिस्पेक्ट टू टाइम हो रही है, तो ये हमारे पास है तो कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट को हम बाहर ले आते हैं. तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको बाहर लिख दिया है यहाँ पर. ठीक है, ठीक है. अब ये एफ डैश ऑफ एक्स ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स डी टी. ठीक है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, ई टू द पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी. सही है, इसका इंटीग्रल यही होगा. और हमने लिमिट लिख दी फ्रॉम माइनस टी टू t1 टू t1. ठीक है बाबा. अच्छा, अब हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये t1 और माइनस t1 हमने लिमिट पुट कर दी. तो अपर लिमिट हम पहले पुट करते हैं, तो इस t में हम पहले t1 हमने पुट किया. ठीक है, और उसके बाद माइनस, फिर हमने माइनस t1 पुट किया. तो ये माइनस, ये देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, और हमने क्या किया है, अब देखिए यहाँ पर एक माइनस है, अगर मैं माइनस पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं एक -1, तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस जे के ओमेगा नॉट टी. ठीक, और ऊपर हमारे पास ये जो टर्म था ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हमने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया है. तो देखें यहाँ पर इसको मैंने माइनस में लिखा हुआ है, और ये माइनस इंटू माइनस टर्म क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. देखें यहाँ पर मैंने इसको प्लस लिखा हुआ है. ठीक है, सो फार सो गुड. सर ये आपने लिमिट पुट की वो समझ में नहीं आया सर, ये थोड़ा स्टेप लिमिट पहले हम देखें, पहले हम क्या करते हैं, पहले इस फंक्शन में हम अपर लिमिट पुट करते हैं, राइट. ये अपर लिमिट, तो देखें अगर
टी, यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने टी की जगह, स्मॉल टी की जगह T1 लिखा हुआ है पहले, सही है। पहले हमने अपर लिमिट पुट की, ठीक है, फिर फार्मूले का माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, सही है। अब मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा यहाँ पर, सही है। तो e टू द पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट, अब स्मॉल टी की जगह मैंने लोअर लिमिट माइनस T1 पुट कर दी, ठीक है। तो ये माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, e टू द पावर जे के ओमेगा नॉट T1, सही है। लेकिन ये माइनस में हमें कुछ इसको मॉडिफिकेशन लानी है, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसको माइनस के साथ, -1 के साथ मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और डिवाइड भी कर रहा हूँ। तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें अब माइनस खत्म हो गया। अब ये -1 जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस था माइनस में आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको माइनस में रखा हुआ है, ठीक है, ये माइनस में आ गया। सेकंड में अब ये माइनस क्योंकि ब्रैकेट के अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको माइनस कर दिया। अब ये माइनस था, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये टर्म हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। जी सर, क्लियर सर। सही है। अब देखिए यहाँ पर एक हमारे पास जे था, अब यहाँ पर हमको चाहिए 2j, क्योंकि हम इसको साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सही है, साइन फंक्शन में। तो हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, 1/2j ई पावर जे थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस जे थीटा, सही है। तो देखिए यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस है, लेकिन यहाँ पर जे हमारे पास 2j अवेलेबल नहीं था, सही है। तो ये जे मैंने यहाँ से अलग करके यहाँ पर रख दिया था और 2 को मल्टीप्लाई भी किया इक्वेशन के साथ और डिवाइड भी किया, ठीक है। तो अब 1/2j ई टू द पावर जे थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस जे थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। तो साइन, अब हमारा थीटा किसके बराबर है, के ओमेगा नॉट T1। तो देखें यहाँ पर के ओमेगा नॉट T1। तो हमने इस सारे, ये जो हमारे पास सारा वैल्यू था, ये हमारे पास सारा, इसको हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया किस में, साइन में, ठीक है। तो बाकी का जो मेरे पास वैल्यू बच गया, अब देखें यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, इस सेकंड इक्वेशन में ओमेगा नॉट का वैल्यू पुट किया है। ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या है, 2π/t। तो ये टी अब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये 2 के साथ खत्म हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, 1/k पाई, सही है। तो देखें ये 1/k पाई साइन ओमेगा नॉट टी, क्लियर। जी सर, क्लियर है। ओके, सो सर एक और सवाल था। जी था। सर उसमें फोरियर सीरीज जो थी, तो मतलब फोरियर ने कहा था कि हम दुनिया के किसी भी सिग्नल को जो है ना इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिकली इसको प्रेजेंट कर सकते हैं साइन और कोसाइन में। तो जी जी जी। वो इसी बात में फंस गया था कि क्योंकि सर जो स्क्वायर वेव थी जब भी हमने प्रॉब्लम सोल्व किया, हाँ हाँ हाँ, वो हम अभी उसके कंडीशंस में प्रॉब्लम आते की हैं वजह से कि क्या हुई जो थी सर। फोरियर था, हाँ सही, मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि फोरियर जो था, फोरियर ने ये कहा था कि भाई हम दुनिया के किसी भी सिग्नल को, पीरियोडिक सिग्नल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइन एंड कोसाइंस में। तो लैग्रेंज और लेप्लास ने उसको अपोज किया था कि भाई आप इस तरह का नहीं कर सकते। तो उसकी उनकी भी अपनी जगह पर कोई ना कोई थी रिजर्वेशन, लेकिन हम उस पर अभी नहीं आए। अभी हम आते हैं कि वो कौन से सिग्नल हैं जो पीरियोडिक तो होते हैं लेकिन फिर भी हम उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते फोरियर सीरीज के फिलहाल, लेकिन हम अभी वहां पर नहीं आए, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, फिलहाल ये बात समझेगी जो हम बात कर रहे हैं, जी सर, वो समझ आती है। ठीक है। वो डिरिचलेट ने फिर उनको कहा था कि भाई वो 3 कंडीशन है, अगर इनको आप देखेंगे तो फिर हो जाएगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। अगर नहीं होगा, अगर ये तीनों कंडीशंस बाउंडेड नहीं होगी तो हमारे पास कभी भी सिग्नल फिर नहीं होगा, हम नहीं शो करेंगे, कर सकेंगे साइंस और कोसाइंस में। वो अलग डिस्कशन है। अब सिर्फ यहाँ पर बात करें कि ये आपको सारी चीज़ समझ आ गई। तो जी अब सर, हम क्लियर। फाइनली हमारे पास एक के, अब हमने सिर्फ एक के देखें, जहन में रखें, वो हमारे पास इक्वेशन के एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू समेशन के फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए के ई टू द पावर जे के ओमेगा नॉट टी, सही है। तो हमने सिर्फ अभी ए के कैलकुलेट किया है। तो ए के किसके बराबर है, 2t1/t व्हेन के इज इक्वल टू 0, ठीक है। और 1/k पाई साइन के ओमेगा नॉट T1 व्हेन के इज नॉट इक्वल टू 0, सही है। तो अब देखिए हमारा एक्स ऑफ टी किसके बराबर था, ये पूरी इस इक्वेशन के। तो हम अब क्या करेंगे, एक एक कंपोनेंट को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमने यहाँ पर गलत किया हुआ है इसको, सही। एक्स ऑफ टी हमारा किसके बराबर हो गया, एक्स ऑफ टी हमारा के फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1/k पाई साइन, ये जो हमने सारा टर्म कैलकुलेट किया, ई टू द पावर जे के ओमेगा नॉट टी व्हेन के इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और जब k इज इक्वल टू 0 होगा तो हम क्या करेंगे इसको भाई, हमने यहाँ पर e टू द पावर 0 अगर देखें यहाँ पर हम लिखते भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है।
e टू द पावर 0, क्योंकि k यहाँ पर 0 हो जाता, और जब k 0 हो जाता तो ये अगेन 1 हो जाता, तो ये 2t1 अपॉन टोटल टाइम पीरियड when k is equal to 0, otherwise this value is equal to this thing, complete this thing, right? सही, तो ये फाइनल हमारे पास आउटपुट ये वाला है। अच्छा, अब देखें यहाँ तक हमारे पास t1 का वैल्यू क्योंकि हमें पता नहीं है, अब मैंने t1 यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, देखें अब ज़्यादातर लोग ये गलती कर जाएंगे कि भाई क्योंकि t1 जो है वो ये बिल्कुल दरमियान में आ रहा है, तो हमारे पास जो टोटल टाइम पीरियड है वो किसके बराबर होना चाहिए, 4t1 के। लेकिन जब तक ये आपको एक्सप्लिसिटली बताया ना गया हो तो आप कभी भी इसको अज्यूम नहीं कर सकते, सही है। आप ग्राफिक उसको समझने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, बना सकते हैं, हमारा सिग्नल को बनाने के लिए आप अज्यूम कर सकते हैं कि t1 फॉर एग्जांपल हमारे पास ये चौथा ऐसा है टोटल टाइम पीरियड का, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने एक्सप्लिसिटली कोई कंडीशन में मिली नहीं हुई, तो हम ये कभी नहीं अज्यूम कर सकते अपने से कि भाई अगर t1 का वैल्यू क्या होगा। तो क्योंकि ये हमारे पास जो वैल्यू है ज़रूरी नहीं कि ये बिल्कुल इसके बराबर हो, इस वैल्यू के जो 0 से t1 का वैल्यू है वो t1 से t/2 का ज़रूरी नहीं वही सेम वैल्यू, तो हमें इसका पता नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको समझने के लिए खुद से अज्यूम करते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल अगर टाइम हमारा जो t1 जहाँ पर वैल्यू हमारा 1 है, अगर वो टोटल टाइम पीरियड का जो हमारा टोटल टाइम पीरियड 4 टाइम इट्स t1 है, तो हमारे पास a0 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1/2। सही है, हमने क्या किया यहाँ पर देखें t1 का वैल्यू पुट कर दिया, क्या था वो t/4, ठीक है t/4। अब ये t के साथ कट जाएगा और ये 2 का टेबल 4 पर 2 टाइम्स जाएगा, तो हमारे पास a0 का वैल्यू व्हेन t इज इक्वल टू 4t1 जो हमने खुद से अज्यूम किया हुआ है, अगर ये अज्यूम करेंगे तो a0 का वैल्यू होगा 1/2, ठीक है। और अगर आप इस साइन में यहाँ पर इस साइन में अगर आप ये वैल्यू पुट कर दें t1 का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, फिर ये हम यहाँ पर लिख देते हैं k0 के साइन के अंदर 2 पाई बाय कैपिटल T, राइट, मल्टीप्लाई बाय, अब हमारे पास t1 था यहाँ पर देखें ये t1 है, t1, तो t1 हमारा किसके बराबर है, अब t/4 के, t/4। अब देखें t के साथ कट जाएगा और 2 का टेबल 4 पर 2 टाइम्स, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, k π/2। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास लिखा हुआ है साइन के अंदर अब k π/2 व्हेन t इज इक्वल टू 4t1, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करना चाहें एक एक कंपोनेंट्स को, तो हम 2-4 कैलकुलेट कर देते हैं। देखें अब यहाँ पर जब k इज इक्वल टू 1 होगा तो 1/, k का वैल्यू 1 है तो 1/π, साइन k का वैल्यू 1 था तो साइन π/2, साइन π/2 भाई किसके बराबर होता है, 1 के, सही है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1/π, सही है। अब यहाँ पर a-1 पुट करके देखते हैं, a-1 इज इक्वल टू 1/-π और साइन -π/2। अब आपको पता है साइन हमारे पास ऑड फंक्शन है, तो साइन -θ इज इक्वल टू -sin θ, तो माइनस बाहर निकल आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/π बचेगा और साइन π/2 अगेन हमारे पास 1 है, तो a1 और a-1 का वैल्यू 1/π है, ठीक है। इसी तरह अगर a2 कैलकुलेट करना चाहें तो a2 इज इक्वल टू 1/2π साइन, अब साइन पाई क्या होता है भाई, 0 होता है ना, तो ये जी सर। जो हमारे इवन इंडेक्सेस हैं उन पर देखें कोई भी इसका वैल्यू नहीं होगा हमेशा, 2π 4π उन पर कोई भी वैल्यू इसका नहीं होगा, सिर्फ ऑड वैल्यूज पर होगा। अगर 3 पुट करें यहाँ पर तो क्या होगा, 1/3, ठीक है, 1/3π साइन 3π/2, साइन 3π/2 भाई किसके बराबर होता है, -1 के, तो ये वैल्यू हो जाएगा -1/3π, ठीक है। तो इस तरह आप कैलकुलेट वैल्यू कर सकते हैं, आप जितने वैल्यूज कैलकुलेट करें, ये आप 101 भी कैलकुलेट करें तो आपकी मर्जी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया हुआ है कि अगर आप t का वैल्यू 4t1 करें तो अब आपके पास देखें ये जब पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्स को थोड़ा सा अगर गौर करें तो यहाँ पर वैल्यूज देखें आपको कम नजर आ रहे हैं, सही। ये हमारे पास किसके वैल्यू है भला, एक के वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये फर्स्ट इंडेक्स पर क्या था, 1/2 था और 1/π जाहिर बात है 1/2 से
छोटा ही वैल्यू होगा, सही है। तो देखें यहाँ पर वो इससे वैल्यू छोटा है। और अब देखें थर्ड इंडेक्स पर हमारे पास सेकंड इंडेक्स पर देखें यहाँ पर 0 है, थर्ड इंडेक्स पर इसका वैल्यू नेगेटिव है, फोर्थ पे 0 है, फिफ्थ पे इसका वैल्यू पॉजिटिव है। ये अल्टरनेट देखें वैल्यू इसके चेंज हो रहे हैं, सही है। तो अगर इसको आप थोड़ा सा अगर हम कहते हैं कि भाई अगर हम टाइम टी इनफाइनाइट हो जाए तो हमारे पास देखें जैसे जैसे हम टी का वैल्यू फॉर एग्जाम्पल पहले हमने टी इज इक्वल टू 41 किया तो हमारे पास देखें वैल्यूज कुछ डिस्पर्स्ड नजर आ रहे हैं, दूर दूर नजर आ रहे हैं, सही है। लेकिन अगर जैसे जैसे हम इसको वैल्यूज को बढ़ाते जाएंगे तो देखिए हमारे पास हमारे पास जो इंडेक्स हैं करीब आते जाएंगे। और हम कहते हैं कि जब टी इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब हमारे पास टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो जाएगा, और टाइम पीरियड इन्फिनिटी किसका होता है, अब पीरियोडिक सिग्नल्स का होता है। तो हमारे पास एक इस तरह की वेव बनती हुई नजर आनी चाहिए थी, इसको हम सिंक फंक्शन कहते हैं, सही है। वो इस तरह आप एक्यूरेट नहीं बना सकते माउस को मूव करके, तो सिंक फंक्शन इसका बन रहा है, पूरा एनवेलप उसका फिर बन जाएगा। तो जितने नंबर जितना हम टी को बढ़ाते जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज बढ़ते जाएंगे, सही है। व्हेन हम कहते हैं कि जब टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो हमारे पास एक बिल्कुल सिंक फंक्शन बन जाएगा। एक बात याद रखें, एक जो सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है कि हमारे पास अगर एक स्क्वायर वेव है उसका अगर हम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स फाइंड करना चाहें तो वो हमेशा क्या होंगे, सिंक फंक्शन ही बनेगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर हमारे पास एक स्क्वायर वेव आपको अगर टाइम डोमेन में गिवन है और अगर आप उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन फाइंड करना चाहें तो वो हमेशा सिंक फंक्शन ही बनेगा, ये बात याद रखें, ठीक है। और अगर आपको मज़े की बात यह है स्क्वायर वेव की एक बहुत अच्छी खासियत यह है कि अगर वो आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में अवेलेबल हो और आप उसका टाइम डोमेन फाइंड करना चाहें, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्क्वायर वेव है तो टाइम डोमेन में हमारे पास हमेशा अगेन सिंक बनेगा, सही है। तो ये ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी इसकी कहलाती है। बहरहाल अब हम बात करते हैं कन्वर्जेंस ऑफ फोरियर सीरीज, ठीक है, कन्वर्जेंस ऑफ फोरियर सीरीज। अब देखें हमने यहाँ पर एक फार्मूला लिखा था, ये मुझसे किसी ने नहीं पूछा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई ना कोई मुझसे ज़रूर पूछेगा कि सर ये किस तरह हो सकता है। देखें हमने कहा है कि भाई हम इनफाइनाइट ए के कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स के साथ और हम उसका फिर एक्स ऑफ टी बना लेंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या ये पॉसिबल है कि हम इनफाइनाइट हम कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करके सम करें, क्या ये पॉसिबल है? नो सर। नहीं है ना। तो जाहिर बात है हम कुछ ना कुछ, मतलब हम कहते हैं कि एन, अब ये एन जो है अब इसको कभी भी आप हमारे पास देखें डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स में हम एन रिप्रेजेंट करते हैं किसको, टाइम पीरियड को। ये उस टाइम की बात, टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहा है, ये क्या है फॉर एग्जांपल 0 1 2 अप टू एन कंपोनेंट, सही है। अगर हम एन ए के कंपोनेंट्स कैलकुलेट करना चाहें, सही है, ठीक है, तो हम हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 2n, सॉरी हो जाएगा माइनस, ये 2n प्लस 1 होगा, क्यों, क्योंकि माइनस एन तक एक कंपोनेंट्स और n तक दूसरे, तो 2n प्लस 0, सही है। तो 2n प्लस 1 इसके यहाँ से जो कंपोनेंट्स कैलकुलेट होंगे वो टोटल कितने होंगे, 2n प्लस 1, सही है। अगर ये हम कैलकुलेट करना चाहें, हम इसको फाइनाइट तो कह सकते हैं, देखिए ये कोई वैल्यू फाइनाइट ही है, सही है। तो फाइनाइट हार्मोनिकली रिलेटेड एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट्स हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि अब हम यहाँ पर इन्फिनिटी को हमने खत्म कर दिया, सिर्फ n को रख दिया है, ठीक है। लेकिन अब आपको पता है कि हम जो सिग्नल हमारे पास मिलेगा वो तो अगर हम ओरिजिनल सिग्नल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो तो सिर्फ इसी कंपोनेंट इसके थ्रू ही मिलेगा, सही है। ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसके थ्रू ही मिल सकता है, मतलब हमें इनफाइनाइट टर्म्स को आपस में सम करना पड़ेगा मैथमेटिकली, लेकिन ये तो यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। तो मतलब कोई ना कोई एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, सही है। और वो एरर किसके बराबर होगा कि हमारे पास जो ओरिजिनल सिग्नल था उसमें से अगर हम ये वाला वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें जो हमें हमारे पास अभी रिजल्टेंट आउटपुट मिला है जो कि मिलता जुलता है उस स्क्वायर वेव की तरह, अगर ओरिजिनल सिग्नल में से हम वो मिलता जुलता जो हमारे पास आउटपुट मिला है उसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमें एरर मिल जाएगा कि भाई कितना एरर हुआ है, सही है। इसको समझने के लिए हम इस तरह कहते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल कि भाई फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बिल्कुल प्योर साइन स्क्वायर वेव इस तरह थी, सही है, जो हमने कैलकुलेट किया है थ्रू बाउंडेड कोफिशिएंट्स कि हमारे फाइनाइट जो कोफिशिएंट्स थे, अब उसमें जाहिर बात है क्योंकि हमने एरर आ गई होगी क्योंकि हमने एन कंपोनेंट्स इनफाइनाइट कंपोनेंट्स को ऐड नहीं किया तो वो इस तरह की होगी, सही है।
तो अब इसमें और इसमें डिफरेंस वाला क्या है, वो एरर हम कह रहे हैं। अगर इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओरिजिनल में से अगर ये हमारे पास जो ड्रिवन है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एरर का पता चल जाएगा, सही है। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एरर हमेशा क्या हो, जीरो हो, मतलब कोशिश हम यही करते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, सही है। तो ये बात समझ आ गई कि ये एरर क्या कह रही है। जी सर, मतलब सर एरर जो डिफरेंस मालूम कर मतलब रहे जो थे। ओरिजिनल सिग्नल था, अब जो हमने ड्राइव किया है सिग्नल, हम जाहिर बात है अब इनफाइनाइट कंपोनेंट्स को तो हम स्टोर भी नहीं कर सकते कंप्यूटर में, किस तरह स्टोर करेंगे, सही है। तो हम कुछ बाउंडेड वैल्यूज एन की पे उसको क्या करते हैं, उसको कंप्यूट करते हैं, ठीक है। तो अब अगर ओरिजिनल में से वो हमारे पास जो ड्रिवन सिग्नल है उसको अगर सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या मिल जाएगा, एरर मिल जाएगा, और एरर इसके बराबर होता है, ठीक है। ये हमारे पास एरर, ठीक है। we need to specify quantitative measure of size of the approximation error. The criteria that we will use is energy। सही, हम क्या चाहते हैं कि भाई हम जो हमारे पास जो एरर बचेगा इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो एरर होनी चाहिए वो बिल्कुल जीरो के करीब होनी चाहिए। अगर जीरो ना हो तो जीरो के करीब होनी चाहिए, अप्रोचेस टू जीरो हो, सही है। जीरो तो अब नहीं अचीव कर सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि ये कम से कम हो, ठीक है। अब एक बंदा था जिसका नाम था गिब्स, सही है, एक अमेरिकन साइंटिस्ट था। वो इस पर काम कर रहा था फोरियर सीरीज पर। उसने ये देखा कि जब हम ये अब देखें, जब n इज इक्वल टू 1 है, मतलब हमने सिर्फ एक ही कंपोनेंट अगर कैलकुलेट किया है तो वो उसकी अगर आप ग्राफ बनाए तो ये बनेगा। जब अब तीन कंपोनेंट हार्मोनिक के रिलेटेड हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल है उनको अगर ऐड करें तो आपके पास जो आउटपुट मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा, सही है। जब n इक्वल टू 7 है, आप 7 मतलब -7 टू +7 अगर कैलकुलेट करें कंपोनेंट्स को और ऐड करें तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम कंपोनेंट्स को सम करते जा रहे हैं, हमें स्क्वायर वेव की तरह सिग्नल दिखता हुआ नजर आ रहा है, सही है, एक एक कंपोनेंट जो अभी हमने कैलकुलेट किए हैं, राइट। अब यहाँ पर देखें, इसने n इक्वल टू 19 कंप्यूट किया है, तो अब बहुत मतलब ज्यादा रिलेटेड तो हमारे पास जो हमारे ओरिजिनल सिग्नल था उस जैसा बना है। और 79 अगर इसने n व्हेन n इज इक्वल टू 79 तो हमारे पास सिग्नल कुछ इस तरह बना है, सही। तो गिब्स ने ये देखा कि भाई अगर आप जितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को ऐड करते जाएं तो आपके पास एक क्या बनता है, स्क्वायर वेव की तरह एक शेप बनती जाएगी, सही है। गिब्स ने ये कहा था, लेकिन उसने कहा आप भले n इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक चले जाएं, भले n आप इन्फिनिटी पुट कर दें, तो आपको जो ये जो स्क्वायर वेव है इसके कॉर्नर्स पर आपको ये रिपल्स, ये जो देखें आपको नॉइस नजर आ रहा है, ये कभी भी रिड्यूस नहीं होगा, सही है। इस एरर को उसने क्या कहा था, गिब्स फिनोमेना, सही है, गिब्स फिनोमेना। अब मैं वो लिख नहीं पाऊंगा यहाँ पे, लेकिन बहरहाल गिब्स फिनोमेना है, ठीक है। कि भाई ये एरर तो रहेगा, सही। आप इसको फिर फिल्टर कर दें और अलग बात है, लेकिन आप अगर फोरियर सीरीज की बात करें तो आप जितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को ऐड करते जाएं, लेकिन ये एरर जो है, ये जो एक स्पाइक आ गई है, ये हमेशा रहेगी कॉर्नर्स पे, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, गिब्स फिनोमेना। सर बेटा ये बात क्लियर है ना अभी, कि जी सर, जितने क्लियर नंबर ऑफ सर। कंपोनेंट्स ये कम जो होंगे उतना हमारे पास क्या होगा, वैल्यू इरोनियस होगा। जितने हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बढ़ाते जाएंगे हमारे पास ओरिजिनल जो सिग्नल था उस जैसा हमारे पास सिग्नल बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये जो गिब्स फिनोमेना है, ये आप कितने भी कंपोनेंट्स को ऐड करें हमेशा रहेगी। जी बाबा हाणे पूछो। सर जो कोई एरर आ छा इहो इन असांजे स्क्वायर जो ग्राफ आहे सर, इन खे हाँ, स्मूथ करे दो, स्मूथ बनाए दो। शायद तू मुझे लेक ॻाल्हि कोन ॿुधी। मूं इहो चयो त केतिरा बि तव्हां इन कंपोनेंट्स ऐड कयो, ही स्पाइक ज़रूर रहंदी, सम्झो था। विच में तव्हां वटि अच्छा हिते बिल्कुलु बिल्कुलु स्क्वायर वेव जहिड़ो जेको आहे नज़र ईंदो, जंहिंमहिल n इक्वल टू इन्फिनिटी ईंदो, पर ही गिब्स जेको फिनोमेना जेको आख़िर में स्पाइक आहे, इहा रहंदी, इन खे असांखे फिल्टर करणो पवंदो, ॿियो कोई इन जो ऑप्शन कोन्हे, सही आहे। जी सर। ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा था शुरू में कि भाई देखें वो जो डिचलेट था, फोरियर बेचारा तो मैथमेटिशियन, इतना खैर उसकी मैथमेटिक्स अच्छी थी लेकिन इतनी नहीं थी। तो उसने जब अपनी थीसिस प्रेजेंट की तो वो रिजेक्ट हो गई, और उसके बाद 29 में जाकर फिर वो ज़्यादातर आपको ये बताऊं कि फोरियर की जो रिकग्निशन थी वो उसको मरने के बाद मिली। पहले ऐसे नॉर्मल हमारे पास दुनिया में यही होता है
कि जब काम के बंदे मर जाते हैं फिर हमें पता चलता है कि यार वो ठीक था। बहरहाल अब उसने जो कहा था उसको फिर मैथमेटिकली प्रूव डिरिचलेट ने किया था। डिरिचलेट ने कहा था कि अगर एक हमारे पास पीरियोडिक सिग्नल 3 कंडीशंस को अगर वो मैच करता है तो उसका फोरियर सीरीज फाइंड हो सकता है हमेशा, ठीक है, फोरियर सीरीज उसका पॉसिबल है। उसमें 3 कंडीशन क्या है कि पहले तो वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, सही है, मतलब उसका वैल्यू बाउंडेड होना चाहिए, सही है। हमारे पास जो सिग्नल हो पीरियोडिक हो और एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो, उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा हो, सही है, फाइनाइट नंबर ऑफ क्या हो, मिनिमा और मैक्सिमा हो, और उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हो। ये 3 चीजें आप मुझे गारंटी कर दें। डिरिचलेट ने कहा मैं किसी भी सिग्नल, कोई भी आप पीरियोडिक सिग्नल मुझे दें, मैं उसका आपको फोरियर सीरीज फाइंड करके दे दूंगा, ठीक है। तो डिरिचलेट की कंडीशंस 3 समझ आ गई भाई, कि सिग्नल तो एक तो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ उसमें मिनिमा और मैक्सिमा होनी चाहिए, और फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होना चाहिए, सही है। अच्छा, ये 3 कंडीशंस आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि यही हमारे पास कन्वर्जेंस को गारंटी करती है। ये 3 कंडीशंस डिरिचलेट की बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सही है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फोरियर सीरीज। तो हमने देखा फोरियर, हम किसी भी सिग्नल को हमारे पास हार्मोनिकली रिलेटेड कॉम्प्लेक्स सिग्नल से हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल सिग्नल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि भाई हम अगर एक एक कंपोनेंट्स कैलकुलेट करना हो तो हम किस फार्मूला के थ्रू कर सकते हैं। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर सीरीज। और अभी तक हमने डिस्क्रीट की बात नहीं की, सिर्फ हम कंटिन्यूस की ही बात कर रहे हैं, सही है। डिस्क्रीट को हमने छेड़ा ही नहीं है। अच्छा, प्रॉपर्टीज से हमें फ़ायदा क्या होगा, इस पे हम आ जाते हैं कि भाई व्हाई डू वी नीड टू लर्न अबाउट प्रॉपर्टीज, ठीक है। फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन possesses number of important properties that are useful for developing conceptual insight into representation, and they can help us to reduce complexity of evaluation of Fourier series of many signals। अब इसको सिंपल वर्ड्स में आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक एक्स ऑफ टी सिग्नल था जो जिसका शेप आपको पता है, सही है। अब अगर उसका आपको फोरियर सीरीज पता है, ठीक है, इस तरह कि अगर आप इसका आपको एक्स ऑफ टी का फोरियर सीरीज पता है और कोई सिग्नल है इसमें थोड़ा सा उसमें शिफ्टेड है या इसका डेरिवेटिव है, तो आप दोबारा से आपको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ का नॉलेज होगा तो आप डायरेक्टली इसको फिर सॉल्व कर सकते हैं। ये हम प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे कि हम किस तरह प्रॉपर्टीज़ क्या करती हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास वंस अगर आपको नोन होगा कि अगर एक सिग्नल की आपने स्पेक्ट्रल कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट कर दिए, अब बहुत सारे सिग्नल उसके साथ रिलेटेड होंगे, वो सारे सिग्नल्स आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर्टीज़ का पता होगा। अगर नहीं होगा तो फिर आपको दोबारा से फिर वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आउटपुट तो सेम ही मिलेगा, सिर्फ हमारे पास वो री इन्वेंट द व्हील वाला चक्कर हो जाएगा कि आप गाड़ी में चाहते हैं कि मैं दूसरों का व्हील नहीं खरीद परचेज करना चाहता, अपना बनाऊंगा, तो फिर सालों लग जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लीनियरिटी, टाइम शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, कॉन्जुगेशन, टाइम रिवर्सल, टाइम स्केलिंग और बहुत सारी, ठीक है। तो लीनियरिटी क्या कहती है, कहती है कि अगर आपके पास एक एक्स ऑफ टी सिग्नल है जिसके आपको फोरियर कोफिशिएंट्स पता है कि वो ए के हैं, और एक दूसरा सिग्नल है वाई ऑफ टी जिसके आपको पता है कि फोरियर कोफिशिएंट्स बी के हैं। अगर एक तीसरा सिग्नल है जो कि बराबर है एक्स ऑफ टी किसी कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ हो और वाई ऑफ टी किसी बी कैपिटल के साथ कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ हो, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट सिग्नल है फॉर एग्जाम्पल उसको जेड ऑफ टी कहते हैं, वो किसके बराबर होगा, उसके कोफिशिएंट किसके बराबर होंगे, ए के मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ए प्लस बी के मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ बी। तो मतलब आपको दोबारा से ये पूरे सिग्नल को पहले सम करें फिर उसके स्पेक्ट्रल कोफिशिएंट्स फाइंड करें, कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, आप ए के कंपोनेंट्स को रखें, उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस वाई ऑफ टी के कोफिशिएंट्स को रखें, उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करें और उनको सम कर दें, हमारे पास आउटपुट वही होगा जो आप इनको पहले सम करें और फिर स्पेक्ट्रल कोफिशिएंट्स फाइंड करें। तो कितना एरर देखें, टाइम हमारा बच जाता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास टाइम शिफ्टिंग है। टाइम शिफ्टिंग क्या कहता है कि अगर आपके पास एक्स ऑफ टी का आपको पता है कि जो एक एक कंपोनेंट हमारे पास जो स्पेक्ट्रल कोफिशिएंट है वो एक के बराबर है अगर एक्स ऑफ टी का,
तो एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, सिर्फ शिफ्टेड अगर आपके पास सिग्नल हो तो उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, हमारे पास स्पेक्ट्रल कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, ए के सेम देखें, और उसके साथ मल्टीप्लायर होगा ई टू द पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी नॉट। ये जो टी नॉट शिफ्ट है वो हमारे पास यहाँ पर एक्सपोनेंट में हम इसको देके इसको रख सकते हैं, हम इसको प्रूव करेंगे, देखेंगे ये किस तरह होता है। अच्छा, अगर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है ई टू द पावर जे के ओमेगा नॉट टी एक्स ऑफ टी, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ वो यहाँ पर इस तरह शो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है तो हमारे पास आउटपुट में क्या होगा, वही शिफ्ट हमारा के में हमारे पास शिफ्ट आएगा सिर्फ। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए हमारे पास जितना एम जो शिफ्ट था, यहाँ पर जो एम शिफ्ट था वो हमारे पास यहाँ पर टाइम एक्सेस पे शिफ्ट आ रहा है। बस टाइम तो नहीं है, फ्रीक्वेंसी एक्सेस है, तो हमारे पास एक्स एक्सेस पर हम कह सकते हैं शिफ्ट आ रहा है। अगर कॉन्जुगेट है, अगर एक्स ऑफ टी का एक एक कंपोनेंट है आपको पता है, तो एक्स ऑफ टी अगर कॉन्जुगेट उसका हो तो उसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, टाइम रिवर्स्ड और कॉन्जुगेटेड होगा, बस और कुछ नहीं होगा। सॉरी, टाइम रिवर्स नहीं कह सकते हम इसको, एक्स एक्सेस रिवर्स्ड। सही, एक्स ऑफ ए टी में हमारे पास सिर्फ हमारे पास टाइम पीरियड में शिफ्ट आएगा, बाकी एक एक कोएफिशिएंट सेम रहते। कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन इज मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। Multiplication in frequency domain is convolution in time and vice versa. Multiplication in time domain is equal to convolution in frequency domain. ये रिवर्स है, याद रखें। अगर डिफरेंशिएशन है एक्स ऑफ टी की तो सिर्फ जे के ओमेगा नॉट मल्टीप्लाई करते हैं, वही आपके पास आउटपुट मिल जाएगा। तो देखें, अगर आपके पास सिग्नल का एक एक कंपोनेंट पहले फाइंड हुए तो अगर उसका डेरिवेटिव हो, शिफ्ट हो या किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है प्रिडिक्ट करना, अगर आपको प्रॉपर्टीज नोन है। तो हम कुछ जो बहुत पॉपुलर प्रॉपर्टीज हैं हम उनको प्रूव ज़रूर करेंगे। ये तो लिनियरिटी तो बाय इटसेल्फ ही प्रूव्ड है कि भाई एक्स ऑफ टी अगर ए के कंपोनेंट है, वाई ऑफ टी के बी के कंपोनेंट है, अगर जेड ऑफ टी हमारा इसके बराबर है ए एक्स ऑफ टी प्लस बी वाई ऑफ टी, तो उसकी जो रिजल्टेंट हमारे पास फोरियर सीरीज होगी उसको हम सीके के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट, सही है, ऑफ थर्ड सिग्नल, वो किसके बराबर होंगे, फर्स्ट सिग्नल के कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई बाय एम्पलीट्यूड, और सेकंड सिग्नल के कोफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय उसका एसोसिएटेड कोफिशिएंट जो बी था। सही, तो ये इसके बराबर होगा। अच्छा, टाइम शिफ्टिंग क्या कहता है कि भाई अगर हमारे पास एक्स ऑफ टी का आपको पता हो कि उसके जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, स्पेक्ट्रल कोफिशिएंट्स वो ए के हैं, तो अगर बी के को हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहें तो फार्मूला आपको पता है 1/t इंटीग्रेशन ओवर 1 टाइम पीरियड एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी। ठीक, अच्छा, अब देखें, अब यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला के साथ कंपेयर करें, हमारे पास यहाँ पर एक्स ऑफ टी होता है, तो अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई हम कुछ भी करें, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ही वेरिएबल नजर आना चाहिए, दो ये शिफ्टेड नजर नहीं आने चाहिए, ताकि हम इसको आगे सॉल्व कर सकें। तो हमने क्या कहा, फर्जी तौर पर मैंने इसको टाओ के बराबर किया कि भाई टाओ अगर हम अज्यूम करेंगे टी माइनस टी नॉट के बराबर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास डी टाओ किसके बराबर हो जाएगा, डी टी के, तो देखिए डी टी की जगह हमने डी टाओ लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर एक्स टी माइनस टी नॉट की जगह पर ये टाउ आ गया। और अब ये था यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिर्फ स्मॉल टी है, तो स्मॉल टी अगर यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो किसके बराबर होगा, टी इज इक्वल टू क्या होगा, टाउ प्लस टी नॉट। सही है, देखिए टी यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें टी मिलेगा, टी इज इक्वल टू टाउ। ठीक है, एक तो टाउ मिलेगा, अब क्योंकि यहाँ पर नेगेट था टी नॉट, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा टी नॉट। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, टी की जगह ये वैल्यू हमने यहाँ पर फिट कर दिया। ठीक, अच्छा, अब इसको देखें, अगर हम इसको सॉल्व करें, इस इक्वेशन को, ये ब्रैकेट्स को सॉल्व करें, तो माइनस जे ओमेगा नॉट टी नॉट होगा और माइनस जे ओमेगा नॉट टाउ होगा। ठीक है, और अगर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए अब मैं, अगर हमारे पास e टू द पावर, अब मैं सिंपल वर्ड्स में छोटा करके लिखता हूँ, मुझे माउस से लिखना मुश्किल है, e पावर x प्लस वाई हो अगर, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि e पावर x मल्टीप्लाई बाय e पावर y। ठीक है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होते हैं।
अब यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एडेड है तो हम इनको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम इसको किस तरह लिखेंगे, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी नॉट मल्टीप्लाई बाय ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टाउ। सही है। तो अब देखें हमारे पास जो इंटीग्रल है वो तो टाउ के विथ रिस्पेक्ट है, तो हमारे पास ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी नॉट इज अ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने उसको बाहर यहाँ पर आके रख दिया। ठीक है। और अब ये देखें हमारे पास ये सारी इक्वेशन, तो ये हमारे पास एक एक कंपोनेंट्स ही तो हैं, कैलकुलेट हो रहे हैं। सही है। तो एक के टाइम्स ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी नॉट। सही। तो देखिए हमारा बी के क्या है, ओरिजिनल ए के कंपोनेंट्स विथ दिस शिफ्ट। सही है। जो शिफ्ट हमारे पास यहाँ पर आ गया है ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट के साथ हम मल्टीप्लाई करके इस शिफ्ट को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बी के डायरेक्टली मिल जाएंगे। सही है। तो ये बड़ा आसान हो जाता है। अब ये मैंने यहाँ पर सिर्फ ओमेगा नॉट का वैल्यू पुट किया हुआ है, बाकी कुछ नहीं किया हुआ। ओमेगा नॉट का वैल्यू 2π/t है। अच्छा एक बात याद रखें, शिफ्टिंग कोई भी प्रॉपर्टी आप दो सिग्नल पर अगर अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों का टाइम पीरियड हमेशा सेम होगा। अगर दोनों का टाइम पीरियड सेम नहीं है तो आप ये फिर शिफ्टिंग या लिनियरिटी प्रॉपर्टीज उन पर अप्लाई नहीं कर सकते। सही है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर दो सिग्नल्स हैं तो बिल्कुल ही हमारे पास उनका जो टाइम पीरियड है वो बिल्कुल सेम है। सही है। शिफ्टेड का मतलब देखें, अगर एक सिग्नल को आप शिफ्ट करें तो उसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होता। सही है। वो सिर्फ शिफ्ट हो जाता है। तो अगर टाइम पीरियड में डिफरेंस है तो फिर हम ये प्रॉपर्टीज उस पर काम नहीं करेंगे, रिजल्ट हमारे पास गलत आएगा। ठीक है बेटा, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्लियर है? यस सर। अच्छा अब आ जाते हैं हम टाइम रिवर्सल पर कि भाई अगर हमारे पास एक्स ऑफ टी हमारे पास एक के था तो एक्स ऑफ माइनस टी को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इस तरह करेंगे। ठीक है। एक्स ऑफ माइनस टी, अब देखिए यहाँ पर आप याद रखें कि जो जब समेशन आ जाए तो पावर हमारे पास पॉजिटिव होता है। सही है। अगर इंटीग्रेशन आ जाए तो पावर हमारे पास नेगेटिव होता है। सिर्फ कंटिन्यूस की बात कर रहा हूँ, एक ट्रिक दे रहा हूँ कि आप किस तरह याद कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर टी हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर ये यहाँ पर देखें माइनस साइन आ गया। आप अगर प्रीवियस टर्म में नोट करें, अगर मैं आपको दिखाऊं इस क्वेश्चन को तो वहां पर आपको पॉजिटिव नजर आएगा। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है, पर क्योंकि यहाँ पर माइनस टी है तो ये माइनस टी यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होकर हमारे पास ये क्या कर दिया, इसने इसको नेगेटिव कर दिया है। ठीक है। ये नेगेटिव आपको नजर आ रहा है, लेकिन हमें तो यहाँ पर क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम के को अज्यूम कर रहे हैं माइनस एम के साथ। ठीक है। तो एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू, अब ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होगा, अगेन सेम ही रहेगा। सही। तो देखिए के इज इक्वल टू माइनस एम। ठीक है। तो एम इज इक्वल टू माइनस के, तो माइनस इंटू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो अब और प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा। सही। तो इन्फिनिटी अब आप जीरोथ इंडेक्स से लेकर 100 तक ऐड करें या 100 से लेकर 0 तक ऐड करें, आउटपुट तो आपको सेम मिलेगा। तो मैंने लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी रखी। अब के की जगह हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर माइनस एम। सही है। ई टू द पावर, अब देखें माइनस पहले था, अब के की जगह हमने क्या पुट कर दिया, माइनस एम, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। तो अब देखें हमारे पास ये जो सिग्नल है, ये जो सिग्नल है अगर आप देखें तो बिल्कुल ही हमारे पास ए के जैसा, हमारे पास जो एक्स ऑफ टी जैसा ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है यहाँ पर ए माइनस एम का। सही है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर टाइम रिवर्स सिग्नल है तो उसके एक के कंपोनेंट्स भी क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। सही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर मैं एक के को यहाँ पर प्लॉट करता हूँ, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ। सही है। फॉर एग्जांपल का मतलब फॉर एग्जांपल ये कि अज्यूम कर रहे हैं एक वन पर, फॉर एग्जाम्पल के जब वन था तो इसका वैल्यू था फॉर एग्जाम्पल 1/2। सही है। तो हमारे पास अगर बीके को हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल बीके का एक ही कंपोनेंट हम प्लॉट करना चाहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास के एक से और ये हमारे पास क्या है, अगर हम इसको बी के करके कैलकुलेट करते हैं, अब एम मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, मैं के कहता हूँ। ठीक है। यहाँ पर मैं के लिखता हूँ। तो देखिए अगर जो वैल्यू ए के का 1 पर था, अब ये दूसरा सिग्नल जो बी के था उसका कहाँ पर होगा, -1 पर होगा। ठीक है।
तो ये फ्लिप हो गया, जितने भी इसके वैल्यूज होंगे वो क्या हो जाएंगे, ये एक्स एक्सिस पर फ्लिप हो जाएंगे विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो टाइम रिवर्सल अगर आपके पास है, अब देखिए अगर एक सिग्नल की, अब ये जो आपने इतनी बड़ी कैलकुलेशन की हुई है यहाँ पर, अगर आपको इसी सिग्नल का टाइम रिवर्स सिग्नल मिल जाए तो आप क्या करेंगे, सिर्फ आप उसके क्या करेंगे, जो एक एक कंपोनेंट्स आपने कैलकुलेट किए उनको टाइम रिवर्स कर देंगे। ये तो सिग्नल इवन है तो इसमें हमारे पास आउटपुट सेम आएगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं आता। ठीक है, तो आपके पास आउटपुट आपको जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी तो। अगर नहीं होगी तो आप दोबारा से शुरू हो जाएंगे, फिर उसको हल करने की कोशिश करेंगे तो टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई एक्स ऑफ टी का मुझे पता है उसके कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, और अब हमारे पास एक उसी का टाइम रिवर्स सिग्नल है, तो हम उसके सिर्फ एक एक कंपोनेंट्स को फ्लिप कर दें तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर? जी सर, ये मेथड इजी होगा ना सर उससे। ठीक है, बात है हम टाइम स्केलिंग पर। तो अब जैसे मैंने शुरू में कहा कि फोरियर कोफिशिएंट्स टाइम स्केलिंग में चेंज नहीं होते, सिर्फ हमारे पास जो हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी होती है या टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड उसका रिड्यूस हो जाता है, टी बाई ए हो जाएगा। सही है, हमारे पास जो पीरियडिक सिग्नल का टाइम पीरियड होगा वो रिड्यूस हो जाएगा या बढ़ जाएगा, डिपेंड ऑन ए, लेकिन एक एक कंपोनेंट उसके सेम ही रहते हैं। तो अगर आपके पास एक सिग्नल हो, मैं अगर पेपर में कह दूं कि भाई ये हमारे पास एक सिग्नल है, उसके एक एक कोफिशिएंट्स हमारे इस तरह हैं, सही है। अब हम चाहते हैं कि भाई इसका क्या करें, अब हमने इसको स्केल कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू ए, सही है, हमने उसकी स्केलिंग की है। तो अब आप बताएं इसके कोएफिशिएंट्स पे क्या असर होगा। तो आप लिखेंगे कि भाई क्योंकि हमारे पास जो एक एक कंपोनेंट्स है उन पर स्केलिंग का कोई असर नहीं होता, तो ये वैल्यू सेम रहेगी, सही, कैलकुलेट करने नहीं लग जाएगी। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, इसको थोड़ा सा जहन खोल के देखिएगा। तो अब हम कहते हैं कि अगर एक्स ऑफ टी एक सिग्नल है, उसका जो हमारे पास स्पेक्ट्रल कोफिशिएंट्स है वो एक के हैं, और वाई ऑफ टी एक सिग्नल है, उसके स्पेक्ट्रल कोफिशिएंट बी के हैं। और अगर इन दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए और फिर उसकी फोरियर सीरीज फाइंड कर दी जाए, तो इनके जो कोफिशिएंट्स थे ए के और बी के, उनकी कन्वोल्यूशन जो होगी वो हमारी एच ऑफ के साथ हमने रिप्रेजेंट किया है, उसके बराबर होगी। ठीक है, तो अब देखें ए के किसके बराबर होता है। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। एक्स ऑफ टी हमारा इसके बराबर है। ठीक है, एक्स ऑफ टी को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स में ए के टू द पावर जे के ओमेगा नॉट थी। वाई को हमने, अब यहाँ पर के क्योंकि दोनों अगर होते तो कन्फ्यूजन होती, तो मैंने इसको एम के साथ रिप्रेजेंट किया है, एम फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बी एम ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एम माइनस जे एम ओमेगा नॉट टी। सही है, अब इनको मल्टीप्लाई करना है हमने, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सही है, समेशंस को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर समेशन को देखे एक्सचेंज किए हुए। ठीक है, तो ये एम मैंने पहले रखा है कि आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर देखें अब सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन हम इनको, क्योंकि हम इंटरेस्टेड इनको सॉल्व करने में, तो हमने इनको साथ साथ रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने ए एम बी एम नहीं लिखा, बी एम या लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमने इनको साथ रख दिया, और जब ये देखें हमारे पास यहाँ पर जे के ओमेगा नॉट टी ई टू द पावर और जे एम ओमेगा नॉट, तो अगर आप इसको कंबाइन करके रखें तो ये इस तरह हो जाएगा, ई टू द पावर जे के प्लस एम इंटू ओमेगा नॉट टी। सही है, अब हमारा इंटरेस्ट क्या है कि हम इसको एक सिंगल टर्म में रिप्रेजेंट करें। ठीक है, ताकि हम इसको कह सकें कि भाई हमें इसका आउटपुट हमें एक फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स में हम क्या करना चाहते हैं, इन दोनों का आउटपुट हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो देखिए हमने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया जिसको हमने एल के साथ रिप्रेजेंट किया है। हम कहते हैं एल इज इक्वल टू एम प्लस के। सही है, तो अब देखें जब एल इज इक्वल टू एम प्लस के, तो इसकी इनिशियल लिमिट हमारे पास क्या थी, एल इज इक्वल टू एम प्लस के, और एम हमारे पास देखें यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी है, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस के का कोई भी वैल्यू हो तो हमारे पास क्या होगा, एल इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी रहेगा। और अब आखिर में हमारे पास प्लस इन्फिनिटी, तो एल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी रहेगा। के को हमने चेंज छेड़ा नहीं है, एक के। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, बी एम। ठीक है, अब हमें इसको किसके साथ रिप्रेजेंट करना है, एल माइनस के साथ, क्योंकि हम इसके सारे वैल्यूज चेंज करने लगे हैं। तो एम हमारा किसके बराबर होगा, एल माइनस के। सही है, तो देखें यहाँ पर एम हमारे पास किसके बराबर होगा, एल माइनस के, तो हमने यहाँ पर बी को लिखा हुआ है एल माइनस के। ठीक है, ई टू द पावर जे एल ओमेगा नॉट टी। सी इस पूरे को हमने एल के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, ये सिंगल वैल्यू के साथ। ठीक है, तो अब देखें इस पर्टिकुलर सिर्फ इस वैल्यू को देखें, ये जो हमारे पास, इसको मैंने यहाँ पर इसके साथ रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए ये सम हो रहा है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी।
एक हमारे पास जो सिग्नल है वो वैसे का वैसा है, दूसरा देखें इन्वर्टेड है, माइनस के देखिए यहाँ पर ये इन्वर्टेड है और एल के साथ शिफ्ट हो रहा है, सही है। तो मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास क्या हो रहा है, कन्वोल्यूशन हो रहा है। तो प्रॉपर्टी ये प्रूव हो गई कि अगर आपके पास मल्टीप्लीकेशन इन टाइम डोमेन हो तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसके पास क्या होता है, उसका कन्वोल्यूशन होता है, सही। इसको हम ए के कन्वॉल्व विथ बी के साथ रिप्रेजेंट करें या एच ऑफ के साथ रिप्रेजेंट करें, ई टू द पावर माइनस जे एल, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रूव हो जाती है। इसी तरह आप कन्वोल्यूशन को प्रूव कर सकते हैं। कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी आप पहले यहाँ पर कन्वॉल्व करें टाइम डोमेन में, अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप उसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन दो सिग्नल्स की ही रह जाएगी। ये आप खुद, मैं आपको छोड़ता हूँ क्योंकि एक हमने कर दी तो दूसरी बिल्कुल उससे रिलेटेड है, तो वो आप खुद कर लीजिए। अच्छा, उसके बाद कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है भाई, कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है? कॉन्जुगेट का मतलब रिवर्स नहीं होता। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि आपके पास जो भी इमेजिनरी, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसमें एक होता है रियल पार्ट, दूसरा इमेजिनरी पार्ट। सही है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ z, हमारे पास एक वैल्यू है, हम उसको लिखते हैं a प्लस JB फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर हम z का कॉन्जुगेट फाइंड करें तो वो किसके बराबर होगा भाई? अब ये स्टार में बनाया हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा स्टार ड्राइंग, आप देखेंगे कितनी अच्छी। ए सेम रहेगा, रियल को हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। ठीक है बेटा। तो अब आप देखें ज़रा, हमने क्या किया हुआ है कि भाई अगर एक्स ऑफ टी है, उसका एक एक कंपोनेंट्स ये हैं जिनको हम इसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक सिग्नल इसका कॉन्जुगेट हो तो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट पे हम क्या कर देंगे, उसको कॉन्जुगेट करेंगे। अब एक तो हमारे पास ये जे बिल्कुल सीधा सीधा नजर आ रहा है कि भाई ये जे रहा ना, तो इसकी तो साइन हमने कर दी नेगेटिव, सही है। लेकिन ये ए एम, क्योंकि हमें पता नहीं है इसमें कौन से वैल्यूज जे है भी या सिर्फ रियल है, तो इसको इसलिए हमने इसको ए एम होल पावर कॉन्जुगेट इसको शो किया हुआ है, ठीक है। अब ये याद रखिए, ये कन्वोल्यूशन नहीं हो रहा है, ये कॉन्जुगेट को मैंने शो किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर माइनस आ गया, हम तो यहाँ पर प्लस चाहते हैं, तो हमने क्या कर दिया, हमने m को माइनस एम के बराबर सपोज कर लिया, तो m फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब ये यहाँ पर m क्या था, पॉजिटिव था, तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव आ गया, ठीक है। और e टू द पावर पॉजिटिव जे एम ओमेगा नॉट टी हो गया, ठीक है। अब आप अगर कंपेयर करें इसको एक एक कोएफिशिएंट्स के साथ, तो यहाँ पर देखें एक एक कोएफिशिएंट्स, अब इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि अब एक एक कोएफिशिएंट्स जो भी थे, अगर उसका कॉन्जुगेट सिग्नल का ओरिजिनल का टाइम डोमेन में लिया जाए तो उसके जो बी के कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, टाइम रिवर्स्ड होंगे और कॉन्जुगेट होंगे, सही है। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक के कंपोनेंट्स इसके इस तरह हैं, एक हमारे पास एक के कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल 1 इंडेक्स पर हमारे पास क्या था, फॉर एग्जांपल 1/j था, सही है। तो बीके में हमारे पास क्या होना चाहिए, हाँ भाई बीके में हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो ये होंगे टाइम रिवर्स, तो मतलब 1 पे जो आउटपुट था वो अब कहाँ पर होना चाहिए, -1 पर, ठीक है। और वो क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट, तो 1/j का कॉन्जुगेट क्या होगा, -1/j, अब कोई भी वैल्यू होगा -1, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर एक सिग्नल हमारे पास एक्स ऑफ टी था, उसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो उसके जो बी के कंपोनेंट्स होंगे वो एक एक के टाइम रिवर्स्ड होंगे और कॉन्जुगेट होंगे। अच्छा, लेकिन मैं अज्यूम करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2 पर इसका वैल्यू क्या था, फॉर एग्जाम्पल 1 था, कोई भी, अब इसको हम इस तरह कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स और रियल को साथ, फॉर एग्जाम्पल 2 पर ये 1 था, तो अब इसका बी के कंपोनेंट ये कहाँ पर आएगा दूसरा, -1 पर, 1 वाला तो -1 पर आ गया, 2 वाला कहाँ पर आएगा, 2 वाला सर 2 वाला -2 पे आएगा, टाइम रिवर्स -2 पर आएगा। उसका आउटपुट क्या होना चाहिए, सर। एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए उसका, सर एम्पलीट्यूड देखिए कॉन्जुगेट होगा सर, बस क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा सर उसका, हाँ 1 का कॉन्जुगेट क्या होता है, सर -1। नहीं, यही तो मसला है वन कि का भाई वन ही होगा। जो हमारे पास रियल नंबर है उसका कॉन्जुगेट तो वही होगा, हम तो सिर्फ इमेजिनरी जो पार्ट होता है उसको नेगेट करते हैं ना। तो ये अगर रियल नंबर है तो इस पे कोई फर्क नहीं है, समझ गए बात।
जी अगर सर, जी यहाँ पर जी। इसके साथ प्लस जे होता तो 1 माइनस जे बाद में होता, लेकिन अब हमारे रियल नंबर पे हमारे पास कॉन्जुगेट का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सिर्फ हमारे पास इमेजिनरी कंपोनेंट्स पर ही इसका फर्क पड़ता है। ठीक है बाबा। अच्छा, उसके बाद पार्सिवल रिलेशन ऑफ पीरियोडिक सिग्नल, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोनाउंसिएशन है। आप ये जो साइंटिस्ट है, इसने एक रिलेशन बताया था, इसने क्या कहा था, पार्सिवल रिलेशन स्टेट्स देयर टोटल एनर्जी, टोटल एवरेज पावर, सॉरी टोटल एवरेज पावर, ये जो हमारे पास टोटल एवरेज पावर है, सही है, इन अ पीरियोडिक सिग्नल इक्वल्स टू सम ऑफ द एवरेज पावर्स इन ऑल ऑफ इट्स हार्मोनिक्स, सही है, कि हमारे पास जो एवरेज पावर होता है वो किसके बराबर होता है, सारे जो हमारे पास एक एक कंपोनेंट्स है उनके सम के बराबर होता है। तो अब इसको हम करके देखते हैं कि ये क्या वाकई इस तरह की बात है या नहीं। अब एक्स ऑफ टी को हमने क्या कर दिया, हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब हमको पता है कि अगर एब्सोल्युटली इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ए के पर भी एब्सोल्यूट स्क्वायर आ जाएगा और ई टू द पावर जे के ओमेगा नॉट पर भी स्क्वायर आ जाएगा। और हमें पता है कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर बराबर होता है, यहाँ पर जो वैल्यू हो, और थीटा हमारा इसके जे थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, अगर ए के को हम अलग कर दें, इसको हम अलग कर दें, तो यहाँ से हमें मैग्नीट्यूड भला क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, सही है। और एंगल तो हमें चाहिए नहीं, इंटरेस्टेड ही नहीं है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं, तो इसके साथ मल्टीप्लाई 1 लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब अगर ये ए के हमारे पास क्या है, हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, तो ए के हमारे पास कोफिशिएंट है, इसको हम बाहर ले आए, और जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टी फ्रॉम 0 टू टी हो जाएगा, सही है। हमने जब इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 1 है तो 1 का इंटीग्रल क्या होता है, टी होता है, तो इसको वैल्यू पुट करेंगे तो टी हो जाएगा, टी टी के साथ जाएगा कट, तो बाकी हमारे पास जो क्या आएगा, एक के स्क्वायर। तो क्या जो टोटल एवरेज पावर है हमारा किसके बराबर होता है, सम ऑफ हमारा, अब ये के क्या है हमारा, केथ हार्मोनिक का क्या है, केथ हार्मोनिक का हमारा पावर हमने फाइंड किया, एवरेज पावर, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, सम ऑफ ऑल पावर्स अवेलेबल इन हार्मोनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। ये पार्श्वर्सल रिलेशन इसको कहा जाता है, ठीक है बेटा। क्लियर सर। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास है फोरियर सीरीज। अब देखें, जो भी हमने अभी तक बात की है वो सिर्फ किसकी बात की है, हमने सिर्फ बात की है कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज की, राइट। तो अब जो हमारे पास सेकंड टॉपिक है उसको हम क्या कहते हैं, फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल्स, राइट। तो अब वही बात अब इसमें कि भाई हम क्या करेंगे, सिर्फ हम इंटरेस्टेड हैं फोरियर सीरीज फॉर पीरियोडिक सिग्नल, लेकिन वो क्या होंगे, डिस्क्रीट होंगे, सही। पहले हमने कंटिन्यूस की बात की थी। तो अब in this section we consider Fourier's representation of discrete time periodic signals while discussion closely parallels with Fourier series। तकरीबन Fourier series for continuous time signals के साथ बिल्कुल मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स होंगे, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं। कौन से, इन पर्टिकुलर Fourier series representation of discrete time periodic signal is finite series। देखिए, हमने जब एक एक कंपोनेंट्स को हमने फाइंड करना शुरू किया था तो हमने देखा था कि के फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी था कंटिन्यूस में, लेकिन डिस्क्रीट में ऐसा नहीं होगा। इसमें हमारे पास जो फोरियर कोफिशिएंट्स फाइंड करेंगे, एक के जिसको हम कह रहे थे, तो वो फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट नहीं होंगे कभी भी, सही है। एज अपोज टू इनफाइनाइट सीरीज रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल, सही है। तो हमारे पास जो एक एक कंपोनेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं कंटिन्यूस टाइम में, इनफाइनाइट, लेकिन अब यहाँ पर क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, सही है। एज कंसिक्वेंस देयर आर नो मैथमेटिकल इश्यूज ऑफ कन्वर्जेंस, सही है। कन्वर्जेंस का जो इशू था अब यहाँ पर हमारे पास नहीं आएगा, खत्म हो गया। जो हमारे पास कि भाई अब कन्वर्ज कहाँ होगा, कितने n का वैल्यू कितना रखें, गिब्स फिनोमेना, अब यहाँ पर ये चीज़ें खत्म हो गई। यहाँ पर हमारे पास आउटपुट जो होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा, सही है। इसमें हमारे पास फाइनाइट होगा, इसकी वजह से जो भी n का वैल्यू होगा उसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या होना शुरू होगी, रिपीट होना शुरू होगी। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रम होता है, एक के जो हमारा होता है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का, पीरियोडिक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का, वो हमारे पास क्या होता है, स्पेक्ट्रम हमारे पास अब पीरियोडिक होता है।
लेकिन डिस्क्रीट का जो एक एक कंपोनेंट हम फाइंड करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, स्पेक्ट्रल कोफिशिएंट्स हमेशा पीरियोडिक होंगे। सही है, ये बात दोबारा मैं कहता हूँ, इसको ज़रा गौर से सुने कि जो हम एक एक कैलकुलेट करते हैं पीरियोडिक सिग्नल्स के, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के लिए, वो अपीरियोडिक इन नेचर होते हैं, स्पेक्ट्रल कोफिशिएंट्स के अपीरियोडिक होते हैं। लेकिन डिस्क्रीट के जो एक एक कंपोनेंट्स होंगे वो हमेशा पीरियोडिक होंगे, वो n के बाद क्या होंगे, रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। सही है, हम कहते हैं विथ रेस्पेक्ट टू पीरियोडिसिटी उसकी क्या होती है, 2 पाई होती है। सही है, हम इसको सिंपल वर्ड्स में इस तरह लिखते हैं कि 2 पाई के बाद हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के जो स्पेक्ट्रल कोफिशिएंट्स होते हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक, ये बात याद रखिएगा, ये बात बड़ी काम की। अच्छा, अब वही फिर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को पीरियोडिक हम कब कहेंगे, जब एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन प्लस कैपिटल एन हो, और एन हमारे पास फंडामेंटल टाइम पीरियड है, और ओमेगा नॉट हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 पाई/n के बराबर होता है। ठीक है, और उसके बाद हम हमारे पास हार्मोनिकली रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स हैं हम उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब के का वैल्यू चेंज करते रहें तो हमारे पास बहुत सारे सिग्नल आपको मिल जाएंगे, वो आपस में हार्मोनिकली रिलेटेड होंगे। और अगर आप अच्छा, अब जो भी उसका टाइम पीरियड होगा सिग्नल का, उसके बाद हमारे पास सिग्नल क्या हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो हमारे पास एन के बाद हमारे पास जो हार्मोनिक रिलेटेड सिग्नल होंगे वो रिपीट होंगे, क्योंकि हमारे पास जो स्पेक्ट्रम, मैंने पहले ही बात की कि हमारे पास क्या होता है, 2 पाई के साथ क्या होता है, पीरियोडिक होता है। सही। अच्छा, अब अगर हम चाहते हैं कि एक्स ऑफ एन को हम रिप्रेजेंट करना चाहें कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स के साथ, सही है, हार्मोनिकली रिलेटेड हमारे पास सिग्नल्स के साथ रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसके साथ कुछ ना कुछ उसके कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे, आर्बिट्री कोफिशिएंट्स हम कह सकते हैं। सही है, वो कॉम्प्लेक्स इन नेचर भी हो सकते हैं। तो थीटा के ऑफ एन किसके बराबर होगा, ई टू द पावर जे के 2 पाई/n। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैंने क्या किया हुआ है, ओमेगा नॉट का वैल्यू पुट किया हुआ है। तो हम इस तरह एक्स ऑफ एन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं कि हम एक एक वैल्यू भी फाइंड करें, क्योंकि हमें एक एक वैल्यू पता नहीं होंगे तो हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल जैसा सिग्नल हमें कभी नहीं मिलेगा। तो अब हम चाहते हैं कि हम उसको फाइंड करें। सही है, तो उसके अलावा एक और चीज़ है जो हमारे पास ये ई टू द पावर जे के 2 पाई/n हमारे पास किसके बराबर होता है, ये n के बराबर होता है वेन k इज इक्वल टू 0 या n या 2n। n, अब यहाँ पर n हमारे पास क्या है, ये n हमारे पास टाइम पीरियड है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का। सही है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा ना मैं हल करना चाहता हूँ। अब एक एक को तो छोड़ दें फिलहाल, एक ही यहाँ पर नहीं आएगा। सिर्फ ई टू द पावर जे के 2 पाई/n टाइम्स n के बराबर क्यों होता है। सही है, अब इसको, इसकी आपको जो डेरिवेशन या कहीं पर नहीं मिलेगी, ना ही बुक में मिलेगी, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको एनालिटिकली सॉल्व करके बताना चाहता हूँ कि इस n का मतलब क्या है कि ओवर 1 टाइम इंटरवल, तो 0 से लेकर n-1, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि n फ्रॉम 0 टू n-1, या इस तरह रिप्रेजेंट करें, दोनों रिप्रेजेंटेशन ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इसको इस तरह लिखा हुआ है कि n फ्रॉम 0 टू n-1 ई टू द पावर जे के 2 पाई/n। अब हमने क्या कहा कि इसका वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा, इसका वैल्यू हमें n मिलेगा जब k का वैल्यू क्या होगा, k का वैल्यू या तो 0 हो, या फिर हमारा जो टोटल टाइम पीरियड है सिग्नल का, उसका इंटीजर मल्टीपल हो। तो मैं इसको mn लिख देता हूँ। सही है, m कैन बी 0 1 2 3 अप टू एनी वैल्यू। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले मैंने कहा है कि फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं कि टोटल टाइम पीरियड इस सिग्नल में जो हमने लिखा हुआ है वो 4 है। तो यहाँ पर देखें, n की जगह मैंने 4 लिखा हुआ है और n-1 की जगह मैंने 3 लिखा है। बाकी सिग्नल बिल्कुल वैसे का वैसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या ये वाकई बाकी वैल्यूज पर वाकई 0 होगा, कि अगर हमारे पास n जो हमारे पास, ये हमारे पास k जो है, इसका वैल्यू अगर n के बराबर ना हो या 0 के बराबर ना हो, तो क्या वाकई 0 वैल्यू मिलता है। तो मैंने क्या किया है, फर्स्ट देखें, मैंने k का वैल्यू n के बराबर नहीं लिया। n हमारा क्या है, यहाँ पर 4 है, और k का वैल्यू मैंने 2 अज्यूम किया है। तो देखें, ये k की जगह मैंने क्या कर दिया, 2 यहाँ पर रखा, तो 2 टू द 4 हो गया। सही है, 2 टाइम्स 2 इज 4, तो ये 4 पाई/4n। तो ये 4 आपस में कट जाएगा, आपको पता है। तो बाकी क्या बचेगा, पाई n। अब इसको ज़रा ओपन करें, तो पहले n का वैल्यू हमने 0 पुट किया, e पावर 0, फिर e पावर j पाई, फिर e पावर j2 पाई, फिर j3 पाई। तो e पावर 0 हमारा किसके बराबर होता है, 1, और e टू द पावर j पाई हमारा -1 के बराबर होता है।
2 पाई अगेन 1 और 3 पाई हमारे पास -1, तो ये हमारे पास 0 आ गया वाकई। सही है। उसके बाद हम कहते हैं कि भाई दोबारा चलें, के को हम क्या करते हैं 0 या n के बराबर कैलकुलेट करके देखते हैं। हमने पहले के को 0 रखा तो e टू द पावर 0 हो गया, तो ये ऑल 0 हो गए। सही है। तो e पावर 0 e पावर 0 e पावर 0 ये सारे अगर सम करें तो क्या हो जाएगा 4। वाकई देखें जो हमारे पास n था वो क्या था 4 था, और हमारे पास जब k 0 है तो हमें n आउटपुट मिल रहा है। सही है। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि हो सकता है ये लकीली हो गया हो। अब हम दोबारा k का वैल्यू कोई और चेंज करते हैं जो n के बराबर ना हो। n हमारा 4 था, k हमने 3 अज्यूम कर लिया। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें इस पे अगर k का वैल्यू 3 पुट करें तो ये 3 टू द 6 हो जाएगा। सही है। तो हमने यहाँ पर इस समेशन में j 6 पाई बाय 4n लिख दिया। ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो इस पे 2 का टेबल 6 पर 3 टाइम्स जाएगा और 4 पर 2 टाइम्स। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं j 3 पाई बाय 2। आवाज सर अब बेन के न तो अचे माइक तो म्यूट कोने कई अचे थो न न बस। सर सही है, साउंड सही है जी ठीक है सर। बाबा। अच्छा ॿुधो त हाणे जेकॾहिं असां हिते n जो वैल्यू हाणे 0 खां 3 ताईं पुट कंदासीं, पहिरियां e पावर 0 अची वेंदो, छाकाणि n 0 हूंदो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0 प्लस पोइ n जो वैल्यू 1 आहे, पोइ n जो वैल्यू 2 आहे, पोइ n जो वैल्यू 3 आहे। सही आहे। e पावर 0 असांजो छाजे बराबरि हूंदो आहे 1 जे। ठीकु आहे। e पावर j 3 पाए बाय 2 माना तक़रीबन 120 वञी बीहंदो। त उते असांजो साइन जेको हूंदो आहे उहो छा हूंदो आहे -1 हूंदो आहे। ऐं हिनखे असां कीअं रिप्रेज़ेंट करे सघूं था cos थीटा प्लस जे साइन थीटा। सही आहे। असां एक्सपोनेंशियल सिग्नल खे इहो असां ॾिसी आया आहियूं त आइलर ॿुधायो असांखे साइन थीटा। सही आहे। हाणे जेको 3 पाई बाय 2 ते कास असांजो 0 हूंदो। सही आहे। ऐं साइन असांजो छा हूंदो -1। त -1 मल्टीप्लाई बाय जे इज़ सॉरी 3 पाई बाय 2 ते कास साइन असांजो -1 हूंदो आहे। माइनस इंटू माइनस छा थींदो असांजो प्लस थी वेंदो। हिकिड़ो मिनट बीहो असां कैलकुलेट करे था ॾिसूं। 3 पाई बाय 2 छाजे बराबरि हूंदो आहे 3 पाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। असां हिनखे नॉर्मल स्केल में कन्वर्ट कयूं था, हे थी वियो 90 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 270। त असां कैलकुलेट था कयूं साइन 270 साइन त -1 ॾिसो -1 मल्टीप्लाई बाय जे छा थींदो माइनस जे। सही आहे। त हिते असां माइनस जे लिखियोसीं। ठीकु आहे। जेकॾहिं तव्हां ॾिसणु चाहियो त 270 ऑफ कास तव्हांखे छा मिलंदो 0 मिलंदो हमेशा। ठीक है। तो हमारा जो पहला कंपोनेंट था वो 0 हो जाएगा, दूसरे में से -1 मिलेगा, वो मल्टीप्लाई होगा जे से, तो -j। यहाँ से हमें -j मिला। यहाँ से हमें क्या मिलेगा भाई 2 के साथ कट जाएगा। 3 पाई पर हमारे पास जो कास होता है वो -1 होता है। 3 पाई को अगर आप कैलकुलेट करें तो 3 पाई कितना बनता है 180 बाई पाई। पाई के साथ कट गया तो 1 540 थी हुआ ना 540 को अगर आप कॉस इसका कैलकुलेट करें तो -1। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने -1 रखा हुआ है और साइन उसका 0 होगा वहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा आउटपुट जो होगा वो +1 होगा साइन का, तो जे के साथ मल्टीप्लाई होकर वो प्लस जे हो जाएगा। अब +1 -1 0 -j + j 0। ठीक है। तो देखें अब के हमारा n के बराबर नहीं था और आउटपुट हमारे पास 0 मिला है। ठीक है। अब हम एक मरतबा और हम अब पहले हमने 0 के को अज्यूम किया, अब n अज्यूम करते हैं। सही है। तो k = 4, तो हमारे पास क्या हो गया k = n, तो आउटपुट हमारे पास अभी n मिलना चाहिए। तो अब देखें ये हमने k की जगह अगर 4 पुट किया तो 4 टू द 8 हो गया, तो 8 पाई बाय 4। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई के बराबर। तो e पावर 0 प्लस e टू द पावर j 2 पाई 1 प्लस a टू द पावर j 2 पाई 2 और 3। ठीक है। तो e टू द पावर 0 का वैल्यू भी 1 होगा, 2 पाई पर भी कास 1 होता है, 4 पाई पर भी कास 1 होता है और 6 पाई पर भी कास 1 होता है, तो ये 4 अगेन इनके बराबर। सही है। तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये के यहाँ पर नहीं, e टू द पावर j के 2 पाई बाय n हमारा किसके बराबर होता है n के व्हेन k = 0 और विथ सम इंटीजर मल्टीपल ऑफ टोटल टाइम पीरियड।
सही है, बाकी हमेशा 0 होगा। बाबा इहा ॻाल्हि सम्झ अची वई? त असांजो ही जेको समेशन आहे ओवर वन टाइम इंटरवल असांजो छा हूंदो आहे, इन जो वैल्यू n हूंदो व्हेन k इज इक्वल टू 0 या को n जो वैल्यू हुजे, सही आहे। अदरवाइज ही हमेशा छा हूंदो असांजो 0 हूंदो। ठीकु आहे, आवाज़ अचे पई बाबा मुंहिंजो? जी सर ठीकु आहे। इहा ॻाल्हि सम्झ अची वई? यस सर अचे पियो। ओके, त हाणे इहा असांखे छाकाणि डेरिवेशन में अॻिते कमु ईंदी आहे, किथे बुक में तव्हांखे इहा शइ नज़र कोन ईंदी, करे मूं इनखे पाण सॉल्व करे तव्हांखे मां सोचियो हिकिड़ो जगह ॾेखारे छॾियो। अच्छा, अब हम क्या चाहते हैं कि भाई एक्स ऑफ एन हमें पता था किसके बराबर था, समेशन के इक्वल टू एन ए के ई टू द पावर जे के ओमेगा नॉट एन, सही है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अब हमें ए के का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने क्या कर दिया, हमने ई टू द पावर माइनस जे आर 2 पाई बाई एन के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी कर दिया, और उसका जो हमने टाइम उसको समेशन जो चलाया वो एक टाइम पीरियड सिर्फ चलाया है, क्योंकि उसके बाद फिर वैल्यूज रिपीट होते हैं, सही। तो हमारे पास जो समेशन हो जाएगी, अगर अब हमने इसके कॉमन बहुत सारा हल किया हुआ है, तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे कि आपका आउटपुट इस तरह का आएगा। समेशन आप इंटरचेंज करेंगे और आपके पास एक्सपोनेंट पर जे के माइनस आर 2 पाई बाई एन आ जाएगा, सही। अब हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। अब हमें पता है कि जब k इक्वल टू आर होगा तब भी हमारे पास यहाँ पर 0 आएगा, और आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए यहाँ से n, सही है। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, ए के एन होगा। यहाँ से हमें सिर्फ n ही मिलेगा, और तब मिलेगा जब k इक्वल टू आर होगा, सही है। तो यहाँ पर ये r मैंने नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर r होगा, सही। और ये समेशन भी r ही होनी चाहिए बहरहाल। तो हमारे पास ए आर जो फाइनल रिजल्टेंट आउटपुट होगा वो किसके बराबर होगा, 1/n, और वो समेशन चलेगा यहाँ तक। कहने का मकसद ये है कि अगर आपको ए आर कैलकुलेट करना हो, या ए के, यहाँ पर अगर के लिखें तो यहाँ पर भी के आ जाएगा, तो वो आपको किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/n समेशन। अब देखें, अब अगर इसको आप कंटिन्यूस के साथ कंपेयर करें, वहाँ यहाँ पर था 1/t टाइम पीरियड, और कंटिन्यूस में यहाँ पर इंटीग्रेशन था फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, नो सॉरी वन टाइम पीरियड। तो यहाँ पर समेशन भी यहाँ पर क्या है, सिर्फ वन टाइम पीरियड। यहाँ पर एक्स ऑफ टी था, वहाँ पर यहाँ पर एक्स ऑफ एन है, ई टू द पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी था, यहाँ पर माइनस जे के ओमेगा नॉट एन होगा, सही है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर के लिखूँ, अगर आपको समझाने के लिए यहाँ पर के लिखूँ और यहाँ पर के लिखूँ, तो अब देखें हमारे पास सिर्फ यहाँ पर n है डिस्क्रीट टाइम में, और हमारे पास जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल थे t था, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। दूसरा डिफरेंस क्या है कि इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, पीरियोडिक होगा हमेशा। n के बाद वैसा ही आउटपुट रिपीट होना शुरू हो जाएगा। कंटिन्यूस टाइम में ऐसा नहीं था, कंटिन्यूस टाइम में जो उसके एक एक कोफिशिएंट्स थे वो अपीरियोडिक इन नेचर थे, ठीक है। तो फॉर कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर एक्स ऑफ एन हो तो उसको हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स और हार्मोनिकली रिलेटेड सिग्नल्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको हम क्या कह रहे हैं, सिंथेसिस कह रहे हैं, कि आप एक सिग्नल को आप बहुत सारे कंपोनेंट्स को मिला के आप एक सिग्नल बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस। और एनालिसिस में क्या करते हैं आप, एक हमारे पास जो कंप्लीट सिस्टम था, एक कंप्लीट सिग्नल था, उसको आप डिकम्पोज कर रहे हैं इनटू इट्स सब कंपोनेंट्स, तो इसको हम एनालिसिस कहते हैं। तो अगर आपके पास एक के अवेलेबल हो और आप एक्स ऑफ एन फाइंड करना चाहें तो ये इक्वेशन यूज करते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्स ऑफ एन अवेलेबल हो टाइम डोमेन में सिग्नल, आप उसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट या स्पेक्ट्रल कोएफिशिएंट्स फाइंड करना चाहें तो आप ये इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये लेक्चर एंड होता है। अगर आपको कोई सवाल हो तो इसमें पूछ लें आप। बेटा स्क्रीन सबके पास आ रही है ना? जी सर, आ यस रही है। सर। जी सर। ठीक है बेटा, कोई सवाल हो तो अभी पूछें। कोई सवाल नहीं?